नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। वार्ड उत्सव के माध्यम से शहर की संस्कृति को बढ़ावा देना ही मुख्य उद्देश्य है, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने कहा। बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हिरण चटर्जी ने पुलिस पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। कहा, पार्टी के नेता को चोरी के आरोप में बुरी तरह पीटा गया। सिलीगुड़ी के भारत नेपाल सीमा से अवैध रूप से सीमा पार करने के आरोप में एक रूसी नागरिक को किया गया गिरफ्तार। दार्जिलिंग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 11 चोरी के बाइक और स्कूटी के साथ 2 को किया गया गिरफ्तार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सर्दी शुरू होते ही सिलीगुड़ी के विभिन्न वार्डों में वार्ड उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सिलीगुड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में वार्ड उत्सव की रंगारंग जुलूस के साथ शुभ शुरुआत हुई। यह वार्ड उत्सव अगले 2 जनवरी से 20 जनवरी तक आवृत्ति, संगीत, नृत्य, विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से मेगा हेल्थ कैंप के साथ आयोजित किया जाएगा। इस दिन वार्ड के पार्षद और नगर निगम के मेयर गौतम देव ने झंडा फहराकर और गुब्बारे उड़ाकर महोत्सव की शुरुआत की। मेयर गौतम देव ने कहा, सिलीगुड़ी की एकता संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगरपालिका के सहयोग से शहर के हर वार्ड में वार्ड उत्सव आयोजित किया जाता है। আমরা তো পুরো শিলিগুড়ি জুড়েই ওয়ার্ড উৎসবগুলো বিভিন্ন আঙ্গিকে তৈরি করা মানে হচ্ছে। গত বছর থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা নতুনভাবে খুব সুন্দরভাবে আমরা এই প্রোগ্রামগুলো করছি। এই ওয়ার্ডের 33 নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড উৎসবের নাম উন্মিলন 24 শুরু হচ্ছে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে শুরু হবে। বছরের শেষ দিন আমরা শুরু করছি 20 জানুয়ারি এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান। মেগা হেলথ চেক আপ ক্যাম্প হবে 7 তারিখ। উত্তরবঙ্গের এবং বাংলার প্রথিতযশা চিকিৎসকরা গতবারও করেছিলেন, এবারও তারা এই চেক আপ ক্যাম্পে থাকবেন। রাঘব চট্টোপাধ্যায় আসবেন, তার মেলোডিয়াস যে ভয়েস, তার নিজস্ব প্রচুর হিন্দি বাংলা গান আছে। রাঘব চট্টোপাধ্যায় উনি আসবেন এবং আমাদের এখানে স্পোর্টস, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, অন্তাক্ষরী, হিন্দি, বাংলা এবং ইংলিশ 3টে বিভাগ ভাগ ভাগ করে ছোটদের একদম অঙ্কুর থেকে ওপেন টু অল বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রাম হবে। তার মধ্যে গান, নাচ, আবৃত্তি, অন্যান্য আমাদের সংস্কৃতির যে ধারা সেগুলো আমাদের হবে। सब मिले 20 दिन धरे जमजमाट अनुष्ठान। मालदा में बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस के विरुद्ध लगाया बड़ा आरोप। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिरण चटर्जी ने पुलिस पर पार्टी के नेता पर मोटरसाइकिल चोरी का झूठा आरोप लगाकर पिटाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 25 दिसंबर को युवा मोर्चा जिले के महासचिव प्रशांत महतो पर मोटरसाइकिल चोरी करने का आरोप लगाया गया और हमारे नेता को थाने ले जाकर बेरहमी से पीटा गया। पुलिस गुंडों की तरह काम कर रही है, हम इसका विरोध करेंगे। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উত্তর মালদার আমাদের সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত মাহাতো আমার পাশে বসে আছেন। প্রশান্তকে গত 25শে ডিসেম্বর তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডা বাহিনী, পুলিশ বাহিনী তারা তাকে তুলে নিয়ে যায় এবং তুলে নিয়ে গিয়ে থানায় গিয়ে বেধড়ক মারে। এমন মার মেরেছে, দেখুন তার হাত মেরে ভেঙে দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। তার আমাদের কাছে প্রেসক্রিপশানও আছে, দেখুন গাজল স্টেট জেনারেল হসপিটালের প্রেসক্রিপশান, সে প্রেসক্রিপশানে লেখাও আছে এবং ওর আজকে যে হাত ভেঙেছে তার এক্সরে রিপোর্টও আমাদের কাছে আছে। সবই আপনাদেরকে দিয়ে দেবো আলাদা করে। এবং এই যে ভয়ঙ্কর এক অমানবিক অত্যাচার, ওর যে ছবিগুলো আছে যেগুলো আপনারা দেখলে আপনাদের গা শিউরে উঠবে। এই যে যুব মোর্চার ওপরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে ভয়ঙ্কর আক্রমণ, কারণ তৃণমূলের তখন গুন্ডা বাহিনী প্রায় শেষের পথে। তৃণমূলের এখন একমাত্র গুন্ডা বাহিনী রয়েছে পুলিশ বাহিনী। উর্দি পরে পুলিশ বাহিনী গুন্ডাগিরি করছে এবং সেই গুন্ডাগিরির সবচাইতে বড় নিদর্শন প্রশান্ত। আপনারা আগেও দেখেছেন যে কীভাবে কল্যাণীতে আমাদের যুব মোর্চার ছেলেকে গলা কেটে দিয়েছিল। আপনারা দেখেছেন যে ইসলামপুরে আমাদের যুব মোর্চার ছেলেকে গুলি করেছে সামনে। তো এইভাবে যুব মোর্চার উপর আক্রমণ করছে। এই আক্রমণ আমরা আর সহ্য করব না। আজকে আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত বাংলার মানুষকে জানাতে চাই যে আমাদের ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা আমরা সবাই মিলে আন্দোলনে নামবো, কারণ এই অত্যাচার মুখ্যমন্ত্রীর, পুলিশ মন্ত্রীর আমরা আর সহ্য করব না।
सिलीगुड़ी खोरीवाड़ी पानीटंकी इलाके में भारत नेपाल सीमा पार करने की कोशिश कर रहे रूसी व्यक्ति को एसएसबी के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम पावेल अलेक जाद्रव है। जानकारी के अनुसार रूसी नागरिक शनिवार को मेची नदी के रास्ते नेपाल से भारत आने की कोशिश कर रहा था। तभी सीमा पर गश्त कर रहे एसएसबी के 41वें बटालियन के जवानों को संदेह हुआ और उन्होंने बिना वैध वीजा के भारत में प्रवेश करने की कोशिश में रूसी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया और खोरीवाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया। रूसी व्यक्ति को आज सिलीगुड़ी सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। दार्जिलिंग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 11 चोरी की बाइक और स्कूटी के साथ 2 को किया गिरफ्तार। दार्जिलिंग के पुलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाश ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कई महीनों से खरसांग, मिरिक और दार्जिलिंग में स्कूटर और मोटरसाइकिल चोरी की विभिन्न शिकायतें दर्ज की जा रही थी। ऐसी कुल 14 शिकायतें आने के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। कुछ दिन पहले स्कूटी चोरी के आरोप में असीम भौमिक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ के बाद उसने बताया कि कुल 14 बाइकों और स्कूटियों को चोरी कर उसने कुछ बिहार में मोमिरुल मियाँ को बेच दिया है। इसके बाद पुलिस की टीम कुछ बिहार जाकर मोमिरुल को गिरफ्तार कर लिया और चोरी की 11 बाइक बरामद कर ली गई। दार्जिलिंग जिला में लास्ट 3-4 महीने से कुछ चोरी की घटनाएं हमारे सामने आ रही थी। बाइक चोरी, बाइक मतलब स्कूटी और बाकी सारी बाइक्स हैं। ये घटना मेनली सदर पीएस, मिरिक एंड करसोंग पीएस से हम लोग को सुनने में आ रहा था। तो हम लोगों ने जो भी रिपोर्ट हुआ था केस, हम लोगों ने बिना देरी किए सब में एफआईआर किया और सदर पीएस के अलावा हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा चोरी हुई थी वो हम लोग का करसोंग पीएस के अंदर हुआ था एंड बाइक मिरिक में। टोटल हम लोगों ने 14 केस किया था हम लोगों ने लास्ट 3-4 महीने में, और चोरी, बाइक चोरी का एक सारा घटना। तो इसको लेकर के काफी हम लोग गहन चिंतन कर रहे थे, सब लोग मिलकर के टीम कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए। तो हम लोग को ब्रेक थ्रू 3-4 दिन पहले मिला इस केस में कि हम लोगों ने एक छोटा सा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तो बनाया ही था, जो बाइक को रिकवरी करने में हेल्प करने में हम लोग एक स्पेसिफिक उनका फोकस यही था। हमारे 2 ऑफिसर को लेकर बनाया था हम लोगों ने, और उन लोगों ने डिफरेंट जगह रेड भी किया था। तो वहां से हम लोग को 2 बाइक्स मिली थी पहले। एक हमारे एरिया का था, सदर पीएस में चोरी हुई थी बाइक, और एक बाइक माटीगढ़ा थाना के इलाका से चोरी किया गया था। मानवतावाद के प्रणेता सप्ताबजी महाराज की प्रमुख उपस्थिति में आज सिलीगुड़ी के निकट परेड ग्राउंड में 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र समिति के मुख्य प्रकल्प के रूप में आयोजित इस सम्मेलन में दार्जिलिंग पर्वतमाला, उत्तरी बंगाल, सिक्किम, असम सहित पड़ोसी देश नेपाल और भूटान से बड़ी संख्या में अनुयायी उपस्थित रहे। मानव दल को सदैव राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए। यह बात सतपाल जी महाराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने सभी से लोगों के बीच सद्भावना फैलाने का आह्वान किया। उधर भी करेंगे, हम लोग करते हैं, हमारे फंक्शंस होते रहते हैं। पर आपको पता है कि शीतकाल के अंदर क्योंकि पर्वतों में काफी ठंडी हो जाती है तो लोग नीचे सिलीगुड़ी की तरफ आ जाते हैं, इसलिए हम करते हैं ताकि कांग्रेगेशन का ये पॉइंट बहुत सेंटर पॉइंट होता है। और कांग्रेगेशन करने में हमें लैंड भी चाहिए, ज़मीन भी चाहिए, काफ़ी कुछ उसमें सुविधाओं की आवश्यकता होती है। पर हमारे सिक्किम में भी प्रोग्राम होते हैं, खरसियान जगह जगह, हमारे कालिम्पोंग में भी हमारे आश्रम हैं, वहाँ भी हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारा ये लक्ष्य रहता है कि रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, वहाँ पर भी हम जाकर के अपनी संदेश को दें ताकि कोई आदमी हमारे संदेश के बिना न रह सके। आज सिक्किम का सीएम आ रहे हैं इधर में, पीएस गोले जी, और उनके विषय में थोड़ा बता दीजिए ना। हाँ, गोले जी आ रहे हैं सिक्किम के, वो आज आएंगे, हमारे साथ रात को बिताएंगे और निश्चित रूप में हमारी संस्था को देखेंगे। उन्होंने भंडारा को भी उसका निरीक्षण करेंगे, कैसे हम लोगों को खिलाते हैं। तो हमारे कार्यक्रम में वो सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप में सिक्किम में भी हमारे काफ़ी आश्रम हैं, तो हम निश्चित रूप में चाहते हैं कि सहयोग से सद्भावना स्थापित हो, राज्य आगे बढ़े और स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर जागृत हो। राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में अयोध्या से आए अक्षत चावल को लेकर फुलबाड़ी में एक कलश यात्रा निकाली गई। आज सनातन संस्कार अभियान समिति के फुलबाड़ी खंड की ओर से इस कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह कलश यात्रा फुलबाड़ी के बटालियन मोड़ से शुरू हुई
और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट कमेटी सार्वजनिक निमंत्रण के लिए घर घर पीले चावल यानी अक्षत भेजकर निमंत्रण दे रही है। आज अक्षत चावल को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। जय सियाराम, जय बजरंगबली। आज के আমাদের কর্মসূচি ছিল হচ্ছে কলস যাত্রা। কোথা থেকে শুরু করেছেন এই শোভাযাত্রা? এটা আমরা শোভাযাত্রা শুরু করেছি হচ্ছে ব্যাটালিয়ন মোড় থেকে ফুলবাড়ি হয়ে এই বিষ্ণু মন্দির অবধি। মূলত কেন এই শোভাযাত্রা? জানেন, আপনারা সবাই জানেন যে আমরা আমাদের শ্রী রামচন্দ্রের জন্মভূমি হচ্ছে অযোধ্যা। অযোধ্যায় 22 তারিখে হচ্ছে রামচন্দ্রের হচ্ছে প্রতিষ্ঠাতা দিবস হিসাবে প্রতিটি ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণায় অক্ষত প্রসাদ হিসাবে অক্ষত চাল তার সাথে কলস পাঠানো হয়েছে। সেই কলস নিয়ে আমরা একটা যাত্রা শুরু করছি, পদযাত্রা শুরু করছি আর কি ফুলবাড়িতে। কতজন ভক্ত আজকে রয়েছে? প্রচুর ভক্ত এসছে, মানে বলতে পারবো না, অগণিত ভক্ত সবাই এসছে। সবাই এসেই আমাদের 1 থেকে 15 তারিখে আমরা হচ্ছে এই যে অক্ষত চাল, প্রসাদরূপী অক্ষত চাল এসেছে আমাদের এখানে। এই প্রসাদরূপী অক্ষত চাল আমরা এই 1 থেকে 15 তারিখ থেকে আমরা সব মানে প্রতিটি সনাতনী ধর্মী হিন্দু বাড়িতে আমরা প্রতিটি বাড়িতে আমরা প্রসাদ হিসাবে আমরা প্রতিটি বাড়িতে দিব। এবং वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। সোনা মনপুরম লকারে রাখুন, সবাই স্মার্ট হয়ে যান। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जेंट्स टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम पल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं।
a complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एसओजी की डिस्को और पब पर रेड से हलचल मच गई। बीते रात कार्रवाई करते हुए एसओजी ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार सेवक रोड स्थित एक पब और डिस्को बिना अनुमति से चलाया जा रहा था, जिसकी भनक लगते ही एसओजी की टीम रात को पब पहुंची। इसके बाद एसओजी ने प्रबंधन से लाइसेंस और जरूरी कागजात की मांग की, लेकिन प्रबंधन नहीं दिखा पाया, जिसके बाद एसओजी की टीम ने भक्तिनगर थाना की पुलिस की मदद से पब प्रबंधन सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नया साल आते ही पिकनिक का मौसम शुरू हो जाता है। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास के पास आसीगढ़ बैकुंठपुर जंगल में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां गोपाल के साथ वनभोज चल रहा था। आज मैदान में करीब 1000 बाल गोपाल के साथ श्रद्धालु पिकनिक मना रहे हैं। भोजन के साथ नाम संकीर्तन भी चल रहा है। एक कृष्ण भक्त ने कहा, नए साल में पूरा परिवार गोपाल के साथ पिकनिक मना रहा है। गुरु वैष्णव गोपाल को भोग लगाएंगे और उस समय प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। এবার বছরের শেষ কি আয়োজন করা হয়েছে? এখানে আমরা যত সব গোপাল আছে এবং নতুন বছরের আগমন, পুরনো বছরের শেষ দিনে আমরা এরকম তুলে ধরেছি যে সবাই এতে এসে অংশগ্রহণ করে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে এবং নিজের জীবনকে কল্যাণ এবং আত্মান্তিক ধন্য করতে পারে। তো তাতে আমরা এটা আয়োজন করেছি। এখানে সবাই রয়েছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারায় ইস্কন রয়েছে, গৌড়ীয় রয়েছে এবং যারা সবাই আর কি রাধা মাধবের বিশেষ। কত সংখ্যক গোপাল আজকে আমন্ত্রিত হয়েছে? এখানে এখনো তো গুনানো হয়নি, প্রায় 1000 গোপাল হবে কি? 1000 গোপাল হবে না, কিন্তু কাছাকাছি। सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाने की पुलिस ने स्कूटी चोरी के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम प्रीतम मंडल, विजय रॉय और राजेन रॉय है। प्रीतम एनजेपी का और अन्य दोनों सितलापाड़ा के निवासी है। कुछ दिनों पहले सिलीगुड़ी के सेवक रोड से 3 स्कूटी चोरी हो गए थे। शिकायत के आधार पर विभिन्न जगहों से सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की गई। इसके बाद प्रीतम मंडल, विजय रॉय और राजेन रॉय को गिरफ्तार किया गया। तीनों से पूछताछ के बाद चोरी की 4 स्कूटी बरामद की गई। आज आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। धूपगुड़ी ब्लॉक के दक्षिण काथुलिया इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत है। सुबह स्थानीय मजदूरों ने सबसे पहले तेंदुए को देखा। तेंदुए को देखने के लिए स्थानीय युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बगीचे के नाले में लेटे हुए तेंदुए ने हमला कर दिया। घटना में जयंत रॉय नामक युवक घायल हो गया। घटना की सूचना बिन्नागुड़ी वन्य जीवी दस्ते को दी गई। घायल युवक के पेट और पीठ पर चोटें आई है। उसे धूपगुड़ी ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। घायल युवक जयंत रॉय ने बताया कि तेंदुआ बगीचे के नाले में पड़ा था, उसने अचानक हमला कर दिया। ওইভাবে এসে সবাই দেখতেছিল, এসে প্রথমে চাপাতা বাগানে আর কি। তো এমনিতে সবাই দেখলাম যে নেই, তারপরে আমরা এমনি দেখার জন্য গেলাম, তারপর দেখতেছি ওখানে ড্রেনটাতে শুয়ে আছে। তখনই ও মানে অন্য সাইড থেকে একজন আসলো সামনে এগিয়ে, তাতে ও হামলা করার জন্য আমাদের এদিকে দৌড়ে আসে। কি ছিল সেটা? বাঘ ছিল। মানে বাঘই দেখছো কি? হ্যাঁ বাঘই। কোথায় কোথায় আঘাত করছে? পিছনে। আচ্ছা, পিছনে এবং সামনে একাধিক জায়গা না? আচ্ছা, হাসপাতালে যাবে কি এখন? কি নাম তোমার? জয়ন্ত রায়। এটা কোন এলাকা? দক্ষিণ চট্টগ্রাম। कुछ ही घंटों बाद न्यू ईयर यानी साल 2024 की शुरुआत हो जाएगी। नए साल से पहले आज साल के आखिरी दिन कई लोग सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। कई लोग अलग अलग जगहों पर घूमते पिकनिक मनाते दिखे। डुआर्स मूर्ति नदी के किनारे पिकनिक सीजन का लुत्फ उठाते हुए पर्यटकों को देखा गया। कई लोग अलग अलग जगहों पर गाना बजाना, खाना पीना कर साथ में
साल के आखिरी दिन को एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही न्यू ईयर की तैयारी में जुटे हैं। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।